કાકા બાબા બધાને રામ રામ. હું આવી ગયો છું તમારી શું મુકેશ પરમાર ખબરની. જેવી રીતે વાત કરી કે ઝાબા જિલ્લાની વાત કરી. ઝાબા જિલ્લામાં આ જેવી રીતે લોકોને તકલીફ પડે યા દુઃખ પડે યા કોઈને પરેશાની થાય યા કોઈનો જીવન સંકાળી રહ્યો હોય તે તેની હારું જો તકલીફ પડે તેની હારું એક મંગળવારને તને જન સુનવાઈની મતલબ જન સુનવાઈ થાય અને તેની જન સુનવાઈમાં આને આદમી કાગળ અને આવેદન બનાવે તો આવે ત્યાંથી એક સીએમ હેલ્પલાઇનથી થાય અને જન સુનાવણીથી આવેદન ઉપર કાર્યવાહી થાય. એવી રીતે એક મામલો આવ્યો છે. વાત કરી કે મેઘનગરનો જો બોડાવલી ગામ છે તેમાં બોડાવલી ગામમાં આસપાસ કરી પસા વરોહતી ઉપર આસપાસ यानी कि વરોહતી આદિવાસીની જમીન છે અને તેની જમીન પર ગેર આદિવાસીની તેની જમીન પર લીઝ પર લઈ લેતી પસા વરોહા અને તેની પર जो भी आहनो नहीं મળે રાજસ્થાનનો આદમી અને ઝાબવાના લોકો હાથ એવી રીતે કબજો કરીને લીज पर नहीं नाखी. तो जब नाम पर जमीन होती जब तिहुना नाम ने सोंपड़ी रही तो जो अचानक लीज पर केवी रीते आली निजी जमीन છે અને તેના આદમીની ખુદની જમીન છે તેને तिहुन बेघर कर नाख्या. तिहुन जगह छोड़ीने घेर पार छोड़ीने गाँव में जाओ मतलब गुजरात में काम करवा जाओ पड़े तो खुद जेवी कहावत है कि देशना मूल मालिक आदिवासी मूल मालिक आदिवासी कहाँ देखा है. तिहुनी जमीन पर कब्जा बीजा कर दिया. तिहुनी जमीन पर बीजा नजर पड़ेगी અને તેની નજરમાં પડી ગયા. તેનું બાપડા 4 સોરા દીના મોટા મોટા અને તેની ઉંમર પૂરી થઈ ગઈ ઢોકરાની. ફેર બી તેના પરિવારે એવી રીતે જમીનો બીજાને કબજો કરી લીધો. તેની પર 50 વર્ષ તક લીઝ લઈ નાખી. નિજી જમીનોનો કાં ઘોટાળો मतलब निजी आदमीनी जमीन तेनी सोंपड़ेली અને અચાનક એવી રીતે ખેલ કેવી રીતે કર્યો. પટવારી હોય या तहसीलदाરની સાંઠગાંઠથી या તેની મળી તેની હાથે કામ કરી એવી રીતે લાગી. क्योंकि आज जन सुनवाईમાં जो आवेदन આવ્યો હતો એને વાત કરી કે જો તેરસિંહ પિતા એડિયા આ નિવાસી બડાવલી ગામનો जो લેવાવાળો છે જમીન તેઓ અનિલ કુમાર માથુર નિવાસી મેઘનગર का हाल मुकाम उदयपुर राजस्थानનો એટલે હમણે તો રેડો આ હરકો અને તેની જમીન પર લીઝ નાખ્યો उदयपुरનો. तो यो अनिल कुमार माथुर आदिवासी जमीन पर गैर आदिवासी एकल जमीन थी जाए. एक सोचवा समझवा वाले एक उदाहरण है झाबा में लगातार है कड़ियों थायते आ रहा तिहुन कब्जा करवा आ रहा कहीं समकाड़ रहा कहीं बीजा नामे कर दिया. ते आदिवासी ने जन जंगल जमीन ने मूल मालिक की बात करी जो नारो खाली धरना प्रदर्शन में देखाय आंगड़े करियाटे देखाय. लेकिन इनकी जमीन ने हारू लोग आज जिन्होंने जमीन की काल बीजानी जमीन जाए इन्हीं पर भी सामाजिक संगठन कार्यकर्ता कहाँ गायब थे. विचार करवा एवं जो मजबूर से लोग तीनों हाथ सामाजिक कार्यकर्ता तीन हाथे મળે એના જે જમીન છે તેને હકની તેના અધિકારની તી લડાઈ લડી તી કામ કરી આલે તે તાજુ લાગે કે એવી રીતે 1990 માં ये जमीन तातक होती एनी बात फिर बीजाना नामे सड़ीगी. तो केम सड़ी बारीक थी जांच करवी जोईए. हालांकि आवेदन आयु से विना आदमी फर्जी रजिस्ट्री थाई फर्जी नामांतरण थायु कि कम थायु एनी बारीकीथी जांच करे. जांच में जो तथ्य आवे जो बात निकली आवे ते बधाने सामे जागर थवा जोईए ताकि एवी रीते आज एक एवी घटना थी आवाळा समय गामडामां पूगी जाए. क्योंकि ये तो राजस्थाननो आदमी झापवामां घणा कांकाने आवी रही रहा हेवी रीते अगर नियत थी काम करवा सहाय तो ये तो नुकसान है आपको. तो इन पर विचार करो. लेकिन होना उम्र डोकरा ने पूरी उम्र थाएगी तीना 4 छोरा और हमने तो 60-70 साल की उम्र में खुद की जमीन हारो लड़ा कागजों ले भटकी रहो और तीनों निराकरण थाई गयो. हालांकि इन पर जांच करवी जोईए और बारीक थी जांच करे जीनो तीनो हक तीन मळवो जोईए. और हेवी रीते ये एक मामलो आयो छे मेघनगरनो बड़ावली गामनो. इन पर पूरा मामला पर जांच शांतिपूर्ण असर पारदर्शी थवू जोईए. कणे कणे અને વાતની કીધું જે એકદમ ખરી ખોટી તે નીકળીને આવી શકે. દૂધનું દૂધ પાણી પાણી થઈ શકે. તેના કાકાનું તે કાકીનું શું કહેવાનું બાબાનું તેની બાબીનું શું કહેવાનું તેના પરિવારનું હાથે એક સામાજિક પાર્ટીનો સમાજવાદી बहुमत समाजवादी पार्टीનો જે નેતો છે સમાજવાદી પાર્ટીનો તેઓ બી શું કર્યું અને जे काकानी से जमीन जाए थी ते हूँ खैर गुजरात आ तो गाँव छोड़ी आ तो काम छोड़ी आ जमीन મળે ને બેઘર થઈ ગયા તે ગુજરાતમાં જાય કામ કરીને પળી પોસી ગયા બેઘર થઈ ગયા. એવી રીતે વિચાર કરવાવાળી વાત છે. શાસન પર સહયોગ કરે બરાબર તેની જાંચ કરીને તેનો હક અધિકાર લાડી શકે. તેની હાલ એના પૂરા મામલા પર તી હું કહેતું તી હું પીડા છે તે બી તમે સાંભળો અને હું એવી રીતે દેશ
પ્રદેશમાં અને ઝાપા જિલ્લામાં આસપાસના ઇલાકામાં ખૂબ બધી કળી થઈ છે તેની હવે તમારે હું ખબર અને जानकारी ના આપતા કાકા બા બધાને રામ રામ કેટલા સાલ તમારી જમીન કરતેલા અચાનક કોણ લઈ ગયું 40 साल का करतेला हाँ और वो फिर उठा धमका धमकी कर मारो बाप मर गया और मन भगाई ले गए हाँ मैं अकेला था तो मन भगाई दिए अच्छा तो हाल તમારી જમીન નહીં મળે તમે नहीं તેની હારો આજ કલેક્ટરમાં આવે ठीक है કેટલા વર્ષ થઈ ગયા 40 साल हो गए ते घास काटने तो भगो तुम्हारी माँ से तो भगो यहाँ से तुम्हारी ज़मीन नहीं है तो हमको भगाया हाँ फिर हम काम पे चला गया फिर वापस आकर देखे तो बस सारा पलट काट दिया કેટલા તમારા છોરા हमारा 4 छोरा हाँ જમીન નહીં મળે તે પતિ આપકી લે દી हाँ पहले कौन नाम तुम्हारा खावरी क्या समस्या को लेकर ज्ञापन देने समस्या ये है कि सबसे पहले तो आपकी और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि उक्त टीचा पिता बिलारी नामा के नाम की जो ज़मीन थी 41 बीघा जिसके पूर्व सर्वे नंबर 606 है, बाद में 622 और 623 सर्वे नंबर है, जो कि इनके पिताजी है वो ऑफ हो गए। उसके बाद में फर्जी तरीके से उसका नामांतरण करवाकर, जबकि कलेक्टर महोदय ने 2012 के आदेश में उसको निरस्त कर दिया गया था कि आदेश दिनांक तो ये है कि भाई जो आदिवासी की ज़मीन है उसको आप गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, उसको निरस्त कर दिया। उसके बावजूद ये वापस थाना गए, थाना से वापस कलेक्टर महोदय में आया, कलेक्टर महोदय ने वापस निरस्त किया, ये हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट से अभी तक केस पेंडिंग है। ये 40 साल से खेती कर रहे थे, इन खेती करने वालों को इनको भगा के और वो ज़मीन को बेच कर और खाना चाहता है, बेच के वो बहुत सारे ऐसे प्लाट है कि वो नामांतरण करवा के फर्जी तरीके से। जबकि मेरे जांच पड़ताल में मुझे पता चला है कि तहसीलदार के हस्ताक्षर नहीं है उसमें, ओनली वन कागजी रिकॉर्ड में उसका नाम बताता है और इंडस्ट्रीज प्राइवेट इंडस्ट्री के नाम पे 50 साल के लिए लीज पे ली ज़मीन। भाई 50 साल के लिए लीज पे ज़मीन जब ली तो किस आधार पे ली? प्राइवेट तो ज़मीन थी, प्राइवेट ज़मीन तो आप किसी भी लीज पे ले नहीं सकता है और सरकारी ज़मीन तो थी नहीं, तो आपने 50 साल के लिए लीज पे ले ली। तो 50 साल के लिए लीज पे ली तो नामांतरण किस आधार पे हुआ? हमारा ये कहना है। कौन है? कि सही तरीके से इसकी जांच हो जाए और जांच होने के बाद में ज़मीन जिसकी मालिक है उसको वो ज़मीन दी जाए। कौन जिसने जमीन लेने वाला कौन है? ज़मीन लेने वाला अनुल पिता माथुर जोधपुर, वो उदयपुर का रहने वाला राजस्थान का है। और यहाँ हमारे बेड़ावली के अंदर, मैं बेड़ावली का निवासी हूँ, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, उसके नाते मैं इनके लिए खोजबीन कर रहा था। मैं लड़ रहा था बच्चों के सहारा संस्था के लिए, तब तो मुझे पता चला कि ज़मीन तो मेरे भाइयों की है, तो जब मैं दूसरों के लिए लड़ सकता हूँ तो इनके लिए क्यों नहीं लड़ सकता? इसलिए मैंने खुलेआम उसका मोर्चा संभाला, कहीं अखबार में दिया, तहसीलदार को दिया, एसडीएम महोदय से बहस हुई, थाने में दिया, और उसके वो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी तक इनको ज़मीन, मेरा ख्याल से ज़मीन मिल जाना चाहिए, तो वो ज़मीन मिल नहीं रही इनको आज तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलसी मचार है, मैं समाजवादी पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ और किसान संघर्ष समिति से भी जिला अध्यक्ष हूँ।